سے آنٹیوں سے ملوانے کا. یہ بات ہے. اور آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے اور آپ میرا ساتھ ہو جاؤ. ہاں بیٹھ جاتے ہیں, ہم باتیں تھوڑی کریں. بالکل کریں گے. اپنی اتنی ہماری محترم مائیں ہیں, محترم آنٹیاں ہیں. آج تو ہم کچھ زیادہ نہیں لے کر آئے, تھوڑے سے آم لائے. آپ خود ہی آ گئی ہے تو بہت آپ کو صرف انویٹیشن بھی دینا تھا. رانا بہن کہ آپ ان کی امی ہیں نا, میں سب کی امی, رانا امی سب کی امی ملتے فاطمہ کی چھوٹی امی. اور اسد ان کا بھی بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ایکچولی 14 جولائی کو انشاءاللہ سروسز میس کلب میں ہم نے ایک صوفی نائٹ اور ڈنر رکھا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر. پچھلے جو ابھی عید الفطر گزری ہے نا, اس میں ہم نے صراط الجنہ کے بچوں کو انوائٹ کیا. ہم نے کہا تھا ہم کیوں نہ اپنی ماؤں کو بھی انوائٹ کریں, اپنی آنٹیز کو بھی انوائٹ کریں. اور صوفی کلام تو آپ لوگ سب کو پسند ہی ہوگا, جیسے قوالی ہے, امیر خسرو کے ہیں, نجم شراز کے ہیں, آبدہ پروین. آپ کو کون کون پسند ہے صوفیانہ؟ کسی کو آپ بتائیے. صابری ہے. کون ہے؟ ہاں امجد صابری قوال صاحب, ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ہم, ان کو دے رہے ہیں انشاءاللہ. انور مقصود صاحب آئیں گے, ان کے ساتھ آپ کون کون ان کو روزینہ, آپ کا روزینہ صاحبہ کو جانتے جو فلم اسٹار ہوتی تھی, پرانی ایک فلم اسٹار روزینہ, وہی مراد صاحب کے ساتھ بہت آتی تھی. فلم ارمان دیکھا ہوگا, یاد ہے؟ کی بیٹی آ رہی ہے نا, اب سائمہ آ رہی ہیں, ان کا نواسہ نہیں آ رہا ہے. اچھا اچھا. پھر ایک ہماری مہتاب راشدی صاحبہ ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کو ہم لائف ٹائم, ان سب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ, مگر ہم چاہتے ہیں ہماری مائیں بھی ہمارے ساتھ ہوں. آپ لوگ موجود ہوں گے, آپ میں سے لوگ, تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ایسے موقع پر جب ہم یہ دے رہے ہیں. محمد علی شیخی کا نام سنا نا, اللہ اللہ کہہ بھیا, اللہ فقیر اور محمد علی شیخ. کیا دیکھیے کتنے آپا کی بات سنیے کہ ان کی ریکارڈ کے لیے. کون سا تھا ان کو محمد علی شیخی کا؟ اتنے بڑے جیون ساگر میں کوئی دیکھیں کتنی آپ کو یاد ہے ماشاء اللہ. تو اس ان کو دیا جا رہا ہے. پھر اینجی مارشل ہے ہماری بیوٹیشین میں بہت پرانی, وہ اینجیز کے نام سے ان کا پارلر ہے, ان کو بھی ہم لائف ٹائم ایز اے بیوٹیشین کے طور پہ دے رہے ہیں. تو صوفی نائٹ رکھیے اور انشاءاللہ آپ بہت سے کلام سنیں گے. اور کیونکہ یہ سنت ابراہیمی کے اوپر ہے تو چھوٹی چھوٹی شارٹ ویڈیوز چلیں گی. رکن رمی کیوں ہوا اللہ کی طرف سے, ایسے یہ سنت ابراہیم کی وجہ کیا نکلی, یہ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے اور کلام سنیں گے. ہمارے بہت ہی اچھے پرفارمر ہیں عثمان مانی بٹ صاحب, جو کہ بھانجے ہیں سنتوش کمار صاحب کے. کون کون جانتا ہے سنتوش کمار صاحب, سبیہ صاحبہ کو ہے نا, اور ان کی جو نیر سلطانہ صاحبہ, درپن صاحب, سلیمان صاحب, یہ سارے لوگ, پوری فیملی ہے. پچھلی دفعہ یہ لوگ ٹریبیوٹ میں آئے تھے, ان کی بہن آئی تھی, آپا آئی تھی ہماری, ان کی جو بہن ہے نا اپنی سنتوش صاحب کی, ان کی بہن آئی تھی, ہم نے ان کو ٹریبیوٹ دیا تھا. تو ان کے صاحبزادے ہیں عثمان مانی بٹ, شوقیہ گاتے ہیں مگر وہ بہت ہی ماشاءاللہ عمدہ گاتے ہیں. تو وہ پورا صوفیانہ کلام کے اوپر وہ کریں گے. عاصم وارسی ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے کلام, اور ساتھ میں ہم مل کے کھانے بھی کھائیں گے آپ کے ساتھ. تو امید کرتی ہوں فرزانہ پر آپ لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ, اللہ چاہا تو ضرور آئیں گے. تو ضرور آئیے گا, مجھے بتا دیجیے گا. آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے, اور مجھے اس کی بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ چند تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آ جائیں نا, کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں آپ لوگ تاکہ آپ لوگوں کا کمفرٹ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. جو نہیں آ سکے گا ان کا انشاءاللہ عید کا کھانا یہاں پہنچے گا. ان لوگ انشاءاللہ عید کی جو بھی ہے کھانا کھائیں تو یہاں آپ کے پاس, ہماری آنٹیوں کے پاس, مدرس کے پاس. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو تو میں کیوں سلمہ اور آپ کے بھی آفرین, اور ایک اور ہے میں نے فریدہ. اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو کہا میں کوئی کام بغیر ریسرچ کے نہیں. میں نے آپ کا پوری ویڈیوز دیکھی ماشاء اللہ سے,
सलमा आपा के पास आए थे कुछ लोग वो करने के लिए, अब आपके मोहल्ले वाले हाँ है ना, जब बच्ची की बच्चे की बर्थडे थी, दुआ थी बच्ची का नाम, हाँ जी देखें सही कह रही हूँ ना मैं, तो मैं याद रखती, तो मुझे सब माशाल्लाह, मैंने कहते ना कि आपको मैं उस वक्त तो नहीं मगर इस तरफ जान गई, और सुल्ताना जी को तो मैं बहुत ही, आप लोग कितना, मैं कहती हूँ इतनी अच्छा ये लोग वो काम कर रही हैं। असद हो गए, फरजाना, आपको फरजाना अम्मी के नाम से बोल रही हूँ क्योंकि आप इनकी जगती अम्मी हैं, कि वो काम कर रहे हैं जो कहते हैं ना, जो बेटे बेटियां नहीं कर पा रही, बदनसीब है। मैं कहती हूँ वो खुश नसीबी अल्लाह ने इनकी झोली में डाली, इनकी झोली में, और आज मुझे खुश नसीब कर दिया कि मैं आपके बीच में आ रही हूँ। और मेरी आपसे ये है कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ जुड़ा रहना चाहूँगी, अपनी सब माओं के साथ। अगर आप लोग की इजाज़त होगी तो महीना 2 महीने बाद आपके पास हाजिरी दूँगी, आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है? क्योंकि मेरी माँ तो दूसरे पे 25 साल हो गए, कम 60 प्लस की थी, चली गई। उससे 10 साल पहले मेरे वालिद थे, वो भी इतनी उम्र में चले गए, और मैं अपने वालिदैन से बेतहाशा करी। जो घर की चोटी भी थी, आपको पता है घर की जो चोटी होती है वो लाडली भी होती है, और वो कुछ ज़्यादा थोड़े कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, लाड प्यार बिगाड़, शुक्र है लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ा, पता नहीं बिगड़ी हुई नजर आ रही है बस ये है। तो वो मैं अपने माँ बाप को भुला नहीं पाती, माँ बाप को, मेरे कोई बहन भाई, अपने माँ बाप को मैं 6 बहन भाई हैं, तो मैं बस अपनी खुशी महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरी अम्मी मेरे साथ है, मेरी माँ का नाम रिहाना, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी वालदा आज मेरे साथ बैठी है। आज का दिन मैंने माओं के नाम किया, मैं वहाँ गई आगोश में, और आज अभी आपके पास मैंने कहा आज का दिन तो मुझे अपनी माओं के नाम करना, माँ तुझे आपकी आज अम्मी की रूहानी भी बहुत खुश हुई, अल्लाह पाक को जन्नत में आला मकाम है, और अल्लाह पाक हमने भी जाना क्योंकि आए हैं तो जाना है, तो मैं जाना तो हर किसी को, और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम जब यहाँ से जाएं तो उस जहाँ में हमारे लिए हमारे दर्जात वहाँ के लिए बुलंद, हमसे इस दुनिया में कोई ऐसी कोताहियाँ अगर हमसे, क्योंकि हम तो इंसान है ना, पता के पुतले हैं, कुछ हो गया तो क्योंकि कहते हैं ना माफ़ी के दरवाजे अल्लाह ने सिर्फ नज़ा के टाइम पे बंद रखे हैं, तो नज़ा के वक्त तो नहीं होती, मगर नज़ा से पहले हमें नहीं पता जाने अनजाने में हमसे क्या कोताहियाँ होंगी, कोई गलती नहीं, या कोई इतनी सी भी कोई हुई हो या इतनी बड़ी भी कोई हो, अल्लाह पाक सबसे पहले तो हमें हर वक्त इस्तग़फ़ार, इसलिए मैं कहती हूँ आयत करीमा जो है वो है इस्तग़फ़ार। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस्तग़फ़ार के तौर पे तो पढ़ी थी ना तस्वीर, अगर उसके मायने देखें तो अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, और इस रब को कितना खूबसूरत हमारे काबतुल्लाह चल, मैं कहती हूँ नसीब वाले लोग हैं जो इनकी अल्लाह पाक के दर पे है। मगर अगर ये मैं तो ये कहती हूँ आपसे कि ये हमारे शहर अक्सर करीब है, हम तो करीब से देख कर आए ना, तो बहुत आंखों में, आप लोग तो माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आंखों, और मैं गई थी आज, मेरी बेटी माशाल्लाह जद्दा में रहती, मेरी बहन के घर में भी आई है, तो जद्दा में रहते हैं, मैं कहती हूँ तुम लोग तो ऐसी पाक सरजमीन पे अल्लाह पाक उन लोगों के लिए, मेरी औलाद मेरी 5 बेटी, उनके लिए आप सबकी दुआएं चाहिए, शायद की शादी होगी, एक रहेगी, अल्लाह पाक उसको अपने पढ़ाई उसकी मेरी मुकम्मल करा दी, उस बच्ची की टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कर रही है, अब सबकी दुआएं उसके लिए मुझे चाहिए कि इस दफ़ा मेरी बच्ची की डिग्री कंप्लीट हो जाए, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, बस आप लोग दुआएं चाहिए और मेरी बेटी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मैं समझूंगी बस शुरू होंगे। दूसरा ये कि ये कहते ना घर दिल में काबा बसता है, हमें रब कहता है तुम मेरे पास आओ, मैं तो तुम्हारे इतने करीब हूँ। हमेशा मैं दुआ करती थी, 8 साल से दुआ करते थे, वो गए तो यहाँ आए तो सबसे पहले अम्मी ने मेरे को खुशखबरी दी कि आप उम्रे पे जा रहे हो, मेरे खुशी करने थे, मैं शुक्राने के नफल अदा की, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी दुआ तुमने सुन ली, देखे जरा, और यकीन माने मैं इस चीज़ की खुद गवाह हूँ, मैं आपको बताऊँ
کہ لوگ کہتے ہیں نا جب پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے یا ہوتا ہے تب انسان حج کر سکتا ہے یا عمرہ کر سکتا ہے. نہیں, بلاوا جب رب العزت نے آپ کو بلاوا دینا ہے تو وہ پیسے کا بھی انتظام کرتا ہے اور آپ کو وہاں بلا لیتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. یہ میرے ساتھ رخسانہ ہے, آپ کی بہن یہ میری بہن ہی سمجھو, میرا کوئی نہیں, میرے ساتھ اسسٹ کرتی ہے مجھے. رخسانہ اور اس کے میاں نے پچھلے سال حج کیا اور کروایا کسی نے. یہ کہتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی. ہمارے پاس تو پاسپورٹ کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. تو رب العزت نے دیکھے کیسے, ہمارے پاس پاسپورٹ کے پیسے بھی نہیں تھے. میں نہیں سوچ سکتی. پاسپورٹ بنوانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے ہمارے, کیونکہ میں باجی کے پاس کام کرتی ہوں. میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے, ان کو پڑھا رہی ہوں. ہم دونوں میاں بیوی انہیں کے لیے کر رہی ہیں. تو میں ان کے ساتھ 10 سال سے ہوں. تو پچھلے سال ہمیں اچانک کسی نے خوشخبری دی اور پاسپورٹ کے پیسے نہیں تھے, وہ بھی انہوں نے دیے ہمیں. میں ڈی سی پیجر میں جاب کرتی تھی. وہ ہمارے ہر سال حج کے لیے عمرہ کے لیے لکی ڈراز نکلتے تھے اسٹاف کے لیے. اب سوچے میری ایسے اسٹاف کا, میں نام نہیں لینا چاہتی, کسی کی وہ نہیں کرنا چاہتی, جس کی اس زمانے میں 6 سے 7 ہزار روپے تنخواہ تھی اور گھر کی وہ کفالت کرنے والی لڑکی تھی. اس کا قرآن دازی میں نام نکلا. اب محرم کا جانا ضروری ہے, تو ہماری کمپنی نے والد اور والدہ کو دونوں کو 3 کو ٹکٹ دیا. کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ جس بچی کی 6 سے 7 ہزار روپے تنخواہ ہے وہ 3 لوگوں کو عمرے پہ لے گئے. ایسے کتنے واقعات دیکھے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا, بہت سے کے پاس کھربوں روپیہ ہوتا ہے مگر بلاوا اگر نہیں ہوتا تو نہیں کرتا. میرے خیال سے بہت سے لوگ جو جدہ میں ریاض میں مقیم ہیں, ہو سکتے وہ میں تو آئی تو پہلے خوشخبری امی نے دی تو میں شکرانے کا میں نے کہا اللہ کا شکر. وہ 8 سال سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ آخری کرا دے تیرے رسول پاک کی روزے کی, تو پھر نا میں نے تو بلا جب بھی تیرا ہو وہ میرا دیدار کروا دے. تو اللہ نے میری اور یہ کہتے ہیں نا اللہ لگن دیکھ رہا ہوتا ہے. میرا بھی عمرہ ایسے ہی ہوا. آج سے جو میں گئی عمرے پہ تو میں نے نا بس 2-3 مہینے, حالات جیسے ہمارے ملک کے ابھی چل رہے ہیں تب بھی ایسے ہی چل رہے تھے. یہ میں 5 سال پرانی بات بتا رہی ہوں. میں اتنی فیڈ اپ ہوئی, سچی بات بتاؤں, کوئی ایسے میرے پیسے جمع نہیں تھے کہ میں اور میرے میاں دونوں چلے جائیں عمرے کے. بس میں نے ایسی باتوں بات, میری دوست سے فون پہ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا اب تو دل کرتا عمرے پہ چلے جاؤ. آتے کچھ نہیں, جب دل کرتا عمرے پہ چلے جاؤ. کیا یہ ملک میں فضولیات دیکھ دیکھ کے دل دکھتا ہے. نہیں پتا تھا, میں 2 مہینے بعد میرے رب نے ایسا میرا انتظام کیا کہ مجھے اپنے گھر بلا لیا. وہ وسیلہ کرنے جبکہ بچپن میں 10 سال کی عمر میں نے 2 عمرے کیے اپنے والد اور والدہ کی وجہ سے. میرے والد کی آئی ہے 2, مگر ذرا عمر چھوٹی تھی اس وقت, وہ چیزیں اتنی 9-10 سال کی عمر کی. مگر میں نے جب ماں کو, جب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مدینہ شریف سے فلائٹ لے رہی تھی تو میری ماں کی آنکھوں سے زار پتا رہا صبح. تو میں سوچ امی کو دیکھتی تھی اور امی کو دیکھتی تھی, امی اتنا کیوں رو رہی ہیں. میرے چھوٹے تھے, اندازہ نہیں ہوتا امی اتنا کیوں رو رہی ہے. مگر جب بڑے ہو کے خود پہنچے تو وہ آنسو جب نکلے ہیں نا, مجھے وہ اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ میری ماں وہ آنسو ایسے ہی نہیں نکلتے. رب اس وقت وہ مدینہ چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا. کہتے ہیں تیری وہ جو نعت بھی ہے کہ بھٹک جاؤں تیری کریوں وہی قاسم ظفر قاسمی کاری وہی ظفر قاسمی صاحب کے جو ماشاء اللہ سعود کے وہ بھی چچا بھی ہیں, ساتھ ہی ہوتے ہیں. جویریہ بھی آپ کی ماشاء اللہ نصیب ہے, کچھ نصیب ہی ہے کہ وہ ساتھ رہتی ہے. تو میں بہت, مجھے وہاں جا کے بلکہ یہ نعت کے نا الفاظ دماغ میں کھو جاؤں تیری گلیوں میں کہ واپس نہ جانا. اور ظاہر ہے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں, اللہ نے دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنے کے لیے کہا ہے. اب میں بہت بولی, میں چاہتی ہوں کچھ باتیں آپ لوگوں سے, آپ لوگ بھی بولیں لیں. آپ شروع کریں, آپ کچھ ہمارے لیے کیا کہنا چاہیں گے. پیغام کوئی انسانیت کے نام پیغام اچھا یہ کہوں گی کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, اسے ستانا نہیں چاہیے بلا وجہ بلا. بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. آپ کو پیغام دیں. دیکھیں کبھی کبھی کہتے ہیں نا کسی کے دل کو
जगाने के लिए किसी का एक छोटा सा जुमला, एक कहीं भी छोटी सी बात उसका दिल बदल दे, लेकिन मेरा दिल बदल दे। किसकी नात थी याद है? जुनैद जमशेद साहब ने, मेरा दिल बदल दे। कोई पैगाम आप छोटा सा कोई भी पैगाम दे हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों के लिए, हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएगी। आपका पैगाम बहुत मायने रखता है। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हो सकता है वो आंसू हमारे लिए सजा बन जाए। जैसे मैं अभी कह के आई हूँ कि बद्दुआएं नहीं लगती हैं पर आह लग सकती है, क्योंकि आह जब निकलती है जब दिल पे चोट पड़ती है, उस पे बस नहीं है। बस कहते हैं ना, आह को चाहिए एक अमूल ज़मीन, कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के साथ में। तो हमें आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? करीब से आवाज़ अल्लाह सबके लिए अच्छा सोचे, जो बेचारे गुर्बत में हैं, जो बेचारे दिन दिन से मारे हो रहे हैं, उनकी हिफाजत करें। और इनसे कश्मीर हमारा बना हुआ है, उसको जितनी दुनिया मार रही है, लोगों ने कितना मजबूर कर रखा। भारतीय रियासत ने भी अभी सुबह बता रहे थे कि इतना कत्ल कर रहे हैं, औरतों पे जुल्म डंडों से मारते हैं, और उनसे इतना जुल्म हो रहा है। और ये हमारा पाकिस्तान से बेहतर है, इससे बहुत बेहतर है पाकिस्तान की, हमारी दुनिया अच्छी लगी है। और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में भी हमारी औरतों को की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार हर औरत, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, इज्जत से बढ़ के कोई दौलत नहीं औरत की। जब तो हम कह रहे हैं कि यहाँ अम्मी के पास है कुछ भी है, इज्जत और अपनी सबसे बड़ी इज्जत हमारी खुददारी के साथ बैठे इंसान, अल्लाह की मेहरबानी से कितनी कोई बड़ी चीज़ की होती है। तकलीफ नहीं है। नहीं, क्योंकि हमें तो देखिए अल्लाह ने हमसे वादा किया है, सिर्फ अल्लाह वसीले बना। अब वो किसको वसीला बना कहते ना, किसको चुन लिया। बात ये है कि हम कहते हैं ना हमें ये काम अल्लाह ने नहीं, मैं कहती हूँ हमें ये शुक्र करना चाहिए रब्बुल इज़्ज़त, ये तेरा हम पे रहम और करम है कि तूने हमें चुना है। हो सकता है किसी और को चुन लेता, तो हमारे पास तो वो तेरी जो हमसे तूने हमें अच्छे काम अगर कुछ लेने हैं वो ना कर पाते, तो तूने हमें चुना, तो ये तो हमारी नसीब है। तो दिल आज़ारी कहते ना, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो बर किसी का दिल मत तोड़ो। दिल जो है ना, इसमें कोई, मैं जैसे शुरू में आपसे कहा रब बसता है ना, फिर उसके आंसू सजा बन जाए। आंसू सजा बन जाते हैं। तो सजा से डरो, ये 4 दिन की जिंदगी, हमेशा हमेशा की जिंदगी तो वहाँ ना ख़त्म हुई। या इस तरफ हो जा जन्नत पालो, या अल्लाह जहन्नम की आग से बचा दो। हमें देखे ना भाप भी लगती है, हम कैसे मचल जाते हैं। ज़रा सा ढकना हटता है, हाथ पे ज़रा सी भाप लगती है, तड़प जाता है इंसान। मैं तसव्वुर जब इस चीज़ से करती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार बस तू हमें नेकी की हिदायत दे, सीधे रास्ते। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे पाकिस्तानियों के लिए दुआ ही दे दीजिए, कि हमारे मुल्क के लिए दुआ दे दीजिए। आप लोग आपके किसी के आप करीब चले जाए, आवाज़ आए। खुदी को कर तो खुद बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इल्लामा इकबाल ने क्या खूब देखेगा, ये जो खुदी है ना इंसान की, और वो जैसे कि इंसान सिर्फ और सिर्फ ये रब का गुलाम, हम किसके गुलाम हैं? हमें सिजदा सिर्फ किसको इजाज़त है? अपने अल्लाह को करना। हमें आगे, हमें बातिल का साथ नहीं देना है, हमें हक में कहती हूँ शहीद होना ज़्यादा बेहतर है। सच बात कहे, सच कह तो शहीद हो जाओ, मगर गलत बात अल्लाह पाक हमारे मुंह से ना कहवाए, ना हमें ऐसा मौका भी दे, तो परवरदिगार से बेहतर है हमें ऊपर अपने पास शहादत के रुतबे में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों से, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत टाइम निकल कर हमारे लिए। बस असद आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको कोशिश करूँगा, मेरी बहुत एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे आप आधे घंटे लाएं, 20 मिनट लाएं, वो 20-25 आधा घंटा हमारे लिए वो होगा
जो मैं समझती हूँ कि बहुत सुनहरी होगा। ठीक है, आपको कोई कन्वेंस की प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, हम कन्वेंस अरेंज करवा देंगे जाने की। ठीक है, शुक्रिया। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। आप लोग खाने के टाइम पे मैंने डिस्टर्ब किया, मैं आपसे माजरत करती हूँ। आपने बहुत कीमती बातें मुझे सुनने को मिली। आप लोग अल्लाह पाक बस दुआएं चाहिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूँगी आप कुछ कहना चाहेंगी बिनते फ़ातिमा के हिसाब से, जो आप बहुत प्यारा इदारा चला रही हैं। अल्लाह पाक आपको इसका इतना अजर देगा, वो तो हमारे पास कोई अल्फाज नहीं। बस यही है कि मेरा ये कहना है कि जब हम लोग दुनिया में आते हैं तो अपने बच्चों की फ़र्ज़ अदाई से थोड़े से फ़ारग हो जाते हैं, तो हमें अपने हिस्से के काम करने चाहिए। जो भी आपको मिले आपको वो करना चाहिए, जो कि आपकी आखिरत में काम आएगा, आगे वाले घर में काम आएगा, क्योंकि दुनिया भी एक घर है और आखिरत तो असल घर है। तो बस मेरी भी यही दुआ थी कि मुझे अपने हिस्से का काम करना चाहिए, और मैं मांगती भी थी, शुरू से मांगती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज इन माओं को समेट के, इनकी इज़्ज़त को बचा के, इनको सुकून दे के, तो मैं चार दीवारी में बैठी हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप भी अपने हिस्से के काम करें, इज़्ज़त वाले मांगे अल्लाह से कि या अल्लाह हमें इज़्ज़त वाली चार दीवारी में कोई ऐसा काम दे जो कोई ना कर सकता हो और अल्लाह को राज़ी करे, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम औरतें हैं और जवानी बड़ी अच्छी गुजारी होती है, जबकि बुढ़ापा आता है तो औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है। जिस तरह बहू आ गई, जो भी है, बेटा मजबूर हो जाता है, आगे बच्चे होते हैं, फिर माँ क्या करे। एक माँ ही बचती है जिस पे सारा गुस्सा निकलता है, और फिर इन द एंड क्या होता है कि घर से निकल जाओ या निकाल देते हैं, या माँ ही कहती है कि मैंने नहीं रहना। तो बस यही है कि हमें जैसे कि हम औरतें हैं और औरत ही औरत को समझ सकती है, तो इस आप लोग साथ दें इन माओं का और इन माओं के साथ जुड़े। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, इतना अच्छा ये काम कर रही हैं। मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने, जो मैंने अभी आपसे कहा था ना, चुना है, तो आपको चुना है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा बहुत प्यार है। बस यही प्यार चाहिए। इसी पे मैं आज की वीडियो आपसे इजाज़त लेती हूँ। बिनते फ़ातिमा से बहुत खूबसूरत नाम, और आपने जैसे कहा था फ़ातिमा साहिबा आई थी, उनके नाम पे आपने ये नाम लिखा है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में ऊंचा मकाम दे, जन्नत नसीब करे। और अल्लाह पाक अपने बेटे को, असद को भी इस काले खैर में जो आपका साथ दे रहे हैं, मैं समझती बेटे में ना, ना छोटे बेटे बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, तो उनको भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा इसका अजर दे। तो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने हमें टाइम दिया आने के लिए। आपका जज़ाकल्लाह कि आप इतनी गर्मी में घर से निकले आए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी नेकी है, वरना इन दिनों इस टाइम पे नहीं निकला जाता घर से बाहर। अल्लाह ताला आपको इसका बड़ा अजर दे। यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 60 के करीब ख़वातीन हैं, जिनमें से नॉर्मली जो लोग हैं यहाँ पर जो मोबाइल हैं चल फिर सकते हैं। टोटल स्टाफ मिला के 80 लोग बन जाते हैं, 80 लोग हैं यहाँ पर जहाँ पर आप आए हुए हैं। और आपने इनवाइट भी किया, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि क्या उस वक्त माहौल बनता है, क्या सिलसिला है।
वेदर चीज़ें कैसी हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उसमें शामिल होने की। शुक्रिया। पूरी कोशिश करेंगे। हमारी खुश नसीबी होगी नहीं, हमारी खुश नसीबी होगी, सब मदर्स की नसीबी होगी कि हमारे मदर्स डे तो वैसे ही है, हम उस जी, दिन जी। मदर्स डे का इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश ठीक है? होगी। शुक्रिया, मैं आपका ज़्यादा टाइम और नहीं लूँगी, आपने इतने जी, नेक बस काम अभी करने बात हैं, चल रही है नहीं खाने नेक की। काम करने हैं, नेक काम के लिए मैं नहीं चाहती कि आपके 1 मिनट भी नहीं, ज़ाया। thank you, शुक्रिया thank जी, you, अल्लाह thank you। हाफिज़, अल्लाह पाकिस्तान हाफिज़। जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। सो व्यूअर्स, अभी हम वापस हो रहे हैं। आज अल्लाह पाक ने हमारे लिए, मैं समझती हूँ, ये कारी खैर जो हम मिल के आए हैं मदर से, ये दिन हमें दिया। आज तो हमारी मुलाकात हुई है, इंशाल्लाह हमसे जो कुछ हो सकेगा RS फाउंडेशन की जानिब से, हेल्दी लाइफस्टाइल बाय फरजान इरफान की जानिब से, मेरे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं जो कि डोनेशंस देते हैं, जो कि हेल्प आउट करना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ज़रूर, मैं ये जगहें उनको इसलिए दिखाती जा रही हूँ कि उनको पता हो कि ये कितनी इम्पोर्टेंट जगहें हैं, कि जहाँ आपकी डोनेशंस और आपके ये जो पैसा, आप जो भी ज़कात, खैरात, सदकात करना चाहते हैं वो आप कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार खैर में कि हम इनके लिए जो कुछ कर सकें। फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो दवाओं के लिए कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि माँओं को दवाओं की ज़रूरत होती है, जैसे कि दवाओं के साथ सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, वो कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि इन कैश, तो वो कैश किस तरह से उनके काम आ सकता है कि जाहिर है कि इतने अखराजात होते हैं जो ये लोग उठा रहे होते हैं, एक बंदे का बस नहीं है, खतरा खतरा दरिया बनता है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें इस कार खैर में हमारे साथ देंगे। जो लोग मुझे जानते हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमें जो कुछ इनके लिए करना चाहें वो प्लीज़ खुद आगे बढ़ के बताएं। और जैसे कि आज तो मैं इनविटेशन देने आई थी अपनी इन माँओं को, जैसे कि पिछली दफ़ा हमने सिरातुल जन्ना के बच्चों को और हमारे और भी माशाल्लाह गेस्ट थे, उनके साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम किया था। ईद उल फितर की गेट टुगेदर की थी। अब हम सूफ़ी नाइट इंशाल्लाह कम डिनर करने जा रहे हैं 14 जुलाई को, ईद उल अधा के बाद, और उसमें हम माँओं को सलाम पेश करते हैं। और हमारे गेस्ट जो आएंगे इंशाल्लाह, उनको, जिनको हम अवार्ड्स दे रहे हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मैं अभी से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अनवर भाई का, अनवर मकसूद साहब का, जिन्होंने हमसे कहा कि इंशाअल्लाह वो आएंगे और इसमें, इस नोबल कॉज में हमसे उस वक्त लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने में ही आना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद अली शेखी साहब, उनका आना ही बहुत बड़ी बात है कि उसमें आके हमारे उससे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लें। मेहताब राशिदी साहिबा का शुक्रिया करूँगी, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनका है। मैं रुजीना साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगी, मैं एनजी मार्शल का शुक्रिया अदा करूँगी। और इसी तरह साथ साथ अवार्ड का सिलसिला भी जारी रहेगा कि जो लोगों ने मुख्तलिफ फील्ड्स में अपने बहुत काम किए हैं, उनके लिए ये एक अप्रिसिएशन है और हम उनकी खराज तहसीन है समझें। बाकी तो जितना भी उनके लिए कहा जाए, उनके लिए किया जाए, वो कम है। तो ये अब हम वापसी का रास्ता है, ये मैं थोड़ा सा इसलिए रास्ते में बताती जा रही हूँ कि आप ये रास्ता देख सकते हैं कि आपको भी अगर यहाँ विज़िट करना, ये बिनते फातिमा वाला रास्ता है जहाँ से हमारी वापसी हो रही है। और अब हम यहाँ से निकल के जो है इत्तेहाद को टच करेंगे,
खियाबान इत्तेहाद को, और फिर मैं इंशाल्लाह अपने घर की तरफ चलूँगी और आप लोगों से लेती हूँ इस वक्त इजाज़त, और अपनी दुआओं में मुझे भी, और आज हम जितने भी माँओं से मिल के आए हैं और जो लोग उनकी ख़ास केयर कर रहे हैं, जो लोगों ने उनका जो करते धरता है मैनेजमेंट है, उनके लिए अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।